Good morning students. In previous video we have done exercise 23C question number 1 to 4. Now today we will start with question number 5. In question number 5 it is given a rectangular garden is 175 meter long and 96 meter broad. Now which shape of garden is this? Rectangular garden. And length is given 175 meter and breadth is given 96 meter. Find the cost of fencing it at rupees 17.50 per meter. In the previous, in exercise 23A, I have told you about how to find the cost. I've told you whenever we have to find the cost of fencing, we have to see the rate. If the rate is given in per meter, we have to find the perimeter. And if the rate is given in per square meter, we have to find its area. Now, first of all, we have to find the cost of fencing, and rate of fencing is given rupees 17.50 per meter. So, if it is given per meter, what you have to find? Perimeter. First, we have to find the perimeter. Then we will find the cost. Now, perimeter is equals to 2L plus B. It means 175 plus 96 meter. So आपको ऐड करके 175 plus 96 equals to 271. So 271 into 2 it will be equals to 542 meter. So आपका perimeter क्या आ गया? 542 meter. Now we have to find the cost of fencing. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? रेट इनटू पेरीमीटर. रेट इज गिवन 17.50 एंड पेरीमीटर इज 542 मीटर. सो इट विल बी इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट विद दिस 17.50 you will get rupees 9485. You have to show this calculation. आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है 1750 को 542 से मल्टीप्लाई करके. So this is your cost of fencing. Further they have given find the cost of plowing it at rupees 4.50 paise per square meter. Now it is given rate of plowing. Rate of plowing is given. Rate of plowing is given rupees 4.50 paise per square meter. Now rate of plowing is given rupees 4.50 paise per meter square. Now rate is given in per meter square. So for this meter square में हमेशा क्या होता है? Area. So first we have to find area of rectangular garden. That is equals to length into breadth. So 175 meter into 96 meter. तो मल्टीप्लाई करना है आपने और ये आपको शो करना है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 16,800 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया यू हैव गॉट इट. नाउ यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लोइंग. अब आपने कॉस्ट फाइंड करनी है प्लोइंग की, तो दैट विल बी रेट इनटू एरिया. जब आपका यहाँ पे पर मीटर था तब कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने पेरीमीटर से मल्टीप्लाई किया. बट व्हेन द कॉस्ट रेट इज गिवन इज मीटर स्क्वायर, तो हमने रेट को किससे मल्टीप्लाई किया है? एरिया के साथ. तो रेट आपको गिवन है रुपीज़ 4.50 इंटू एरिया 16800 मीटर स्क्वायर. तो ये आपका कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके? आपने इसको उतारा 0 you will cut with this. After multiplying it you will get 75,600 and that will be your answer, cost of plowing. Okay, now similarly we will see question number 6. In question number 6 it is given square tiles of side 20 centimeter are to be laid on the floor of a room 10 meter by 4.5 meter. Now there are two things, tiles and room. Tiles are in the shape of square, so you will use the formula of area of square. But room is in the shape of
rectangle because it is given length into breadth. Then you will find the area of rectangle. How many tiles will be needed? So first of all we will find the area of tiles and area of room. Now tiles is given in shape of square tiles, and side is given of square tile is 20 centimeter. तो area of square tiles will be equals to side square, which means 20 into 20 centimeter square. आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, यहीं पे छोड़ना. नाउ रूम, जो रूम है आपका वो कौन सी शेप का है? रेक्टेंगुलर, बिकॉज लेंथ इज गिवन 10 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 4.5 मीटर. सो यू विल फाइंड एरिया ऑफ रूम जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है. दिस इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इट विल बी 10 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर. वन थिंग यू विल सी, दिस इज गिवन इन मीटर एंड टाइल्स आर गिवन इन सेंटीमीटर. तो आपने इसको किस में चेंज करना है? मीटर स्क्वायर में. तो अब आपने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज सेंटीमीटर में करना है, तो आप पहले भी कर सकते हो. इसको ऐसे करने से पहले आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो 10 इंटू 100 1000 मीटर. सेंटीमीटर. अब आपने मीटर को 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, दैट विल बी 450 सेंटीमीटर. 4.5 इंटू 50. तो एरिया ऑफ रूम आपका अब क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हेन द यूनिट्स आर डिफरेंट, तो आप एक ही यूनिट में आपने उसको चेंज करना है, देन यू विल फाइंड द एरिया. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन हाउ मैनी टाइल्स विल बी नीडेड. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स. अब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? पहले बताओ कि स्क्वायर टाइल्स बड़े होंगी या रूम बड़ा होगा? रूम विल बी द ग्रेटर, वो सबसे बड़ा होगा. तो आपने लेना है एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स. तब आपको पता चलेगा आप रूम में कितनी टाइल्स लगा सकते हो. तो आपने एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स. एरिया ऑफ रूम क्या था आपका? 1000 इंटू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ टाइल्स था आपका 20 इंटू 20. सो आफ्टर कटिंग 0 एंड 0 दोनों कट हो गया आपके. 2 5s एंड हेयर ऑल्सो यू कैन कट बाय 2. 2 2s 4, 2 2s 4, 2 5s 10. सेंटीमीटर भी कट हो गया. तो 5 इंटू 2 25. इट विल बी 1125 टाइल्स. मतलब कि आप रूम में कितनी टाइल्स लगा सकते हो? स्क्वायर टाइल्स 1125 टाइल्स. दिस इज योर नंबर ऑफ tiles. Now we have to find the cost of putting the tiles at the rate of 131.40 per tile. Rate of tile दिया हुआ है कि आपको एक टाइल की जो कॉस्ट है डेट इज ₹131.40 ओके पर टाइल. सो वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पुटिंग द टाइल. तो आपको कॉस्ट ऑफ पुटिंग टाइल्स विल बी इक्वल्स टू, आपको ये पता है कि एक टाइल का रेट कितना है? 131.40. और आपके पास कितनी टाइल्स आई हैं? अभी आपने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड की थी. हाउ मच वॉज दैट? 1125. सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1125. हमारे पास एक टाइल का रेट है. कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज गिवन एंड कॉस्ट ऑफ पुटिंग हाउ मेनी टाइल्स? 1125 टाइल्स. व्हाट विल बी? So you have to multiply it. You will multiply it yourself and you have to find the answer. जब भी आपको टाइल्स फाइंड करनी है तो जितना रेट दिया है उतनी नंबर ऑफ टाइल्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द कॉस्ट. नाउ 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन यू विल ट्राई इट योरसेल्फ. एक बार ही अपने आप ट्राई करना. एरिया भी गिवन है रेक्टेंगल का, ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन. यू हैव टू फाइंड द लेंथ. सो एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू लेंथ. जब आपके पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ इज गिवन, यू कैन फाइंड द पेरीमीटर. तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो. एंड देन इट इज़ फाइंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए पहले आप देखो किस में रेट गिवन है? पर मीटर में. तो आपने पेरीमीटर ऑलरेडी निकाला है, तो पेरीमीटर को आपने इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट द कॉस्ट. सो वंस यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 7 योरसेल्फ. See question number 8.
Find the perimeter of a square whose area is 196 centimeter square. Perimeter आपको फाइंड करना है स्क्वायर का. एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 4 इंटू साइड. बट साइड इज नॉट गिवन टू यू, एरिया इज गिवन. तो पहले आप एरिया से आप क्या निकालोगे, साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल्स टू 196. और यू कैन राइट साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 196. अब एक चीज़ नोट करो, जब ये स्क्वायर आप उस साइड लेके जाते हो तो वो रूट बन जाता है. वी कॉल इट एज स्क्वायर रूट. आप इसको ऐसे साइन में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट. अब आपने ये स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इसका आंसर क्या होगा, ये रूट का आंसर क्या होगा. वी विल मेक द फैक्टर ऑफ 196. 2 9 18, 2 8 2 4 2 9 7 7 7 1. ये आपका आ गया. इसके फैक्टर्स आपके आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. आपने इसका क्या लेना है, पेयर्स हैं ये दोनों, सेम नंबर्स के पेयर हैं, तो आपने एक एक नंबर बाहर ले लेना है. 2 इंटू 7, तो रूट आपका ख़त्म हो जाएगा. तो 2 इंटू 7 इज़ 14 सेंटीमीटर. 196 का आपने जब रूट निकालना है, फैक्टर करने हैं, और जो सेम पेयर्स हैं उसका एक एक नंबर बाहर ले लेना है. यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 196. Perimeter square, formula for perimeter square is 4 into side. Now you got the side 14 centimeter, so 4 into 14 centimeter. You will get 4 4s are 16 and 1 5, 56 centimeter. So like this you will get the perimeter. This part is new to you, in which you have to find the square root. जब स्क्वायर होता है, जैसे आप प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो स्क्वायर भी उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट. और वो रूट कैसे निकालने हैं, लाइक दिस आई हैव टोल्ड यू. सो फॉर टुडे यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 to 8 in your notebooks. Hope you have understood it, and please give the solution on the right hand side of your notebook. Okay, thank you.